Recording in progress. सब संग है तो संभव है। हो रही है बात खुल के HIV एड्स पर, भेदभाव छोड़कर अब आया एक बदलाव है, बदलाव है। युवाओं ने भी अपनी हिस्सेदारी दिखाकर बनाई एक नई मिसाल है, मिसाल है। तय किया था जो लक्ष्य मिलकर हमने और सरकार ने, हो रहा वो साकार है। हम संग है तो संभव है, सब संग है तो संभव है। समझ कर समझा कर काउंसलिंग से हो रहा सुरक्षित व्यवहार है। HIV जांच को नियमित करवा कर खुद के स्टेटस का हर कोई जानकार है। पॉजिटिव निकला अगर HIV तो तुरंत शुरू हो रहा ART उपचार है। सेवाओं का लाभ ले रहे सभी, सबको मालूम अपने अधिकार है। तय किया था जो लक्ष्य मिलकर हमने और सरकार ने, हो रहा वो साकार है। हम संग है तो संभव है, सब संग है तो संभव है। हम संग है तो संभव है, सब संग है तो संभव है। Thank you so much for your kind attention, dear and respected friends. We will take also our questions from the Facebook platform also. So I welcome, first of all, on behalf of Rage Global Foundation, we welcome you to attend this lecture, or rather its awareness program. Dear and respected friend, this is being co-nurtured by Chetna Child and Welfare Society, Raipur. First of all, I welcome our Chief Patron, Deepika Dave, Chief of Rage Global Foundation. She will be joining soon. I also welcome Honorable Speaker, Indu Sahu. She is President of Chetna Child Welfare Society, Raipur. Unfortunately, Dr. Bessie from Mexico, USA, she is not able to join because of some urgent medical issue. Although she texted that she will join after maybe 30 minutes. So today is a very special day. Today is World AIDS Day, a time for us to honor those who have lost to an AIDS-related illness. It's also a time for us to stand in solidarity with the people living with HIV today, and raise awareness on tackling HIV stigma, social stigma, and preventing new HIV transmissions. So it's very important to aware people, and you know, prevention is more important than cure. So with this sensitivity program, we can aware people about HIV related issues. And today I was reading some articles, and many important scientists have, at least here, they have warned that the world could face 7.7 million AIDS related deaths over the next 10 years if leaders, be it social leader or political leaders, don't tackle the inequalities in the availability of drugs and treatment. So this time the theme has become
inequalities in AIDS. So, so in that context, we are, we have to think about um, how the tackling, issue is related to issue of inequality. So I think I'm supposed to ask our honorable speaker, Dr. Bessie, but she is unavailable. So I will invite first Indu Sahu to kindly share her thoughts. She works and she has experience of more than 20 years working in NGOs and running so many activities or sensitive programs, particularly in tribal areas. So how she thinks about awareness program, particularly AIDS awareness program. So now I would like to invite Indu Sahu to kindly share her views. Thanks, Randir, for inviting me, and a very good evening to all of you who has joined the program. And I came to know from Randir that mostly the students will be joining this program. Really happy to know that we are conducting this program again amongst students, because this is very important and a crucial time that the youth of the country and the youth of the world uh, should be a part of this awareness program. Now, uh, it's a very good day which has been chosen to have this webinar, because this is today we are celebrating International World AIDS Day. Now, why do we celebrate this day? This day is celebrated basically to create awareness and to feel the solidarity amongst the HIV infected people living with HIV/AIDS, and of course, the other part of the community uh, which is supporting these people. For example, of course, the infrastructure or the hospitals, PHCs, CHCs, NGOs, everybody is involved in it because they are the part in curing HIV/AIDS. If we don't work together, we will not be able to stop the infection. Our basic aim today is to stop the infection. As you all know, that till date, we haven't received any medicine to fully cure this disease. Since we haven't received any disease or any injections or anything which can cure this disease, so the best thing we can do is to be safe. Now, many of you might be knowing, but still I would like to tell you that what are the 4 reasons because of which HIV virus can be transmitted. There are only 4 reasons. No other reason other than this can cause HIV/AIDS. Now, what are those 4 reasons? One of the reasons is transmission of blood, infected blood. This is the uh, uh, mm, the way through which the virus is transmitted through blood diffusion. This is the cause which infects the maximum. There are 4 causes, but infected blood is the process through which contraction of the disease is highest. And the second is using of infected syringes. Third is unsafe sex. And fourth is infection from mother to child. Now,
Thirdly, I said unsafe sex. Unsafe sex is the reason because of which highest number of people are infected in the world. Let me tell you why. Because it is something which is in everybody's life. There may be a lot of people who have not been infused blood throughout their life. So, but then sexual behavior is something which is almost in everybody's life. So that is the reason why the contraction is through sexual transmission. Now, these are the four reasons, and these itself has its own protection things. Like whenever you are required to infuse blood or get blood, you should see that the blood is not infected. Randhir, I just wanted to know that can I continue in English or should I continue in Hindi? Which is better? Okay. You can also, there are some, students who can better understand Hindi as well. Hindi में भी Okay. आप बात कर सकते हैं. Sure. So I'll continue in Hindi. So, and of course, the other people can also understand in Hindi, of course. So, yes. तो अभी तक मैंने जो बोला शायद आप समझे होंगे कि 4 कारण होते हैं जिससे कि एचआईवी एड्स फैल सकता है, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन है, ब्लड खून की किसी को जरूरत पड़ती है, और या तो हम इन्फेक्टेड सुई का इस्तेमाल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कर लेते हैं, और दूसरा है अनसेफ सेक्स, और चौथा है माँ से बच्चे को। अब ये 4 कारण है, इनके अलावा और कोई भी कारण नहीं होता जिसकी वजह से एचआईवी एड्स किसी को भी फैल सकता है। तो पहला जो कारण है उससे कैसे बचा जा सकता है? उससे इस तरह से बचा जा सकता है कि हमको जब भी खून चढ़ाने की जरूरत पड़े तो हम जो है जांचा परखा ही खून जो है चढ़ाएं, और एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस से उस ब्लड को लें। दूसरा है कि हमेशा एक नई सिरिंज का इस्तेमाल करें, कोई भी पुरानी सिरिंज का इस्तेमाल ना करें। कभी भी किसी भी कारण से हमको अगर सिरिंज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तो हमें एक नए सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा है कि जब भी हम कोई सेक्सुअल एनकाउंटर करें तो हम उसको सेफ रखें। सेफ कैसे रखा जा सकता है? सेफ कॉन्डोम का प्रयोग करके रखा जा सकता है। चौथा है माँ से बच्चे को। अब माँ से बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है? तो ये जो प्रक्रिया है इसमें जो भी गर्भवती माता होती है उसको निरंतर डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ता है, और उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद जो कुछ टेस्ट कराए जाते हैं वो टेस्ट को हमें उनको बच्चे को कराना होता है, और इससे हम बच्चों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। रणधीर ने आपको बता ही दिया होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मैं परिचय दे रही हूँ कि हमारी संस्था जो चेतना है वो पिछले 11 वर्षों से एचआईवी एड्स पर काम कर रही है। इसके अलावा पिछले 20 वर्षों से हम अलग अलग विषयों पर काम कर रहे हैं। और एचआईवी एड्स को लेके हम पिछले 11-12 वर्षों से काम कर रहे हैं। और संस्था ने, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि माँ से बच्चे को बचाने के तहत भी हमने एक 5 साल का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें करीब 450 डिलीवरीज हमने करवाई थी। हेलो। तो इसमें हमने ये सुनिश्चित किया कि जो भी मरीज है वो निरंतर डॉक्टर की निगरानी में रहे, और इससे ये हुआ कि जितने 450 बच्चे पैदा हुए उनमें से किसी को भी एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं था। तो इसको बचाया जा सकता है, हम सभी बच सकते हैं। अब बचने के कारण जो ये 4 कारण है ये तो मैंने बता ही दिए हैं कि हम हमेशा इन चारों चीजों को प्रैक्टिस करें। लेकिन उन लोगों का क्या? और इस दरमियान मैंने ये भी देखा कि जब महिलाएं हॉस्पिटल में आ जाती थी डिलीवरी के लिए, और तब उनका एक मैंडेटरी टेस्ट किया जाता है। हमारी सरकार द्वारा एक नियम है कि कोई भी गर्भवती माता हो
तो उसका HIV टेस्ट खास तौर पे सरकारी अस्पतालों में मैंडेटरी है, जरूरी है। तो उस दरमियान भी कई ऐसी माताएं थी जिनको तब पता चलता था कि वो HIV पॉजिटिव हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विडंबना है कि उनको पता ही नहीं रहता था कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, और इसकी वजह से वो उस दरमियान जो उनकी इलाज हो सकते थे वो नहीं हो पाते। अब इसमें कई बार तो जो पार्टनर्स हैं वो ही नहीं बता पा रहे हैं अपने पार्टनर को कि मैं HIV हूँ, इसलिए आपको HIV एड्स हो सकता है या आप HIV पॉजिटिव हैं। और ना ही उन्होंने कभी ये कोशिश की कि स्वयं से वो HIV का टेस्ट कराएं। तो ये सारी परेशानियां आएंगी जब आप भी अपने लेवल पे काम करेंगे या आप भी समाज में जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए अगर आप कोशिश करेंगे कि हम HIV के प्रति जागरूकता कैसे फैलाएं गांवों में, शहरों में। आज भी इस टॉपिक को लेके बहुत बड़ा टैबू है हमारे समाज में। कोई इस बारे में बात करना नहीं चाहता। सबको लगता है कि HIV मतलब कुछ सेक्स से रिलेटेड कोई वर्ड है या कुछ सेक्स से संबंधित चीजें हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर बात नहीं किया जाता, और इसी की वजह से इस बीमारी के साथ में स्टिग्मा जुड़ा हुआ था। हम सभी जानते हैं पिछले 10-15 वर्षों में हमारे समाज में बहुत बदलाव आया है। 10 से 15 साल पहले कोई व्यक्ति ये कहने की हिम्मत नहीं करता था कि वो एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। कभी-कभी मकान मालिक अपने किराएदारों को सिर्फ इसलिए निकाल देते थे कि वो HIV पॉजिटिव है। उनको हॉस्पिटलों से भगाया जाता था। बहुत सी ऐसी चीजें उनको झेलनी पड़ती थी, और इस तरह से डेथ रेट्स भी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि जब भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता था वो एक स्टिग्मा के कारण समाज में जो व्याप्त था उसके कारण वो कहीं ना कहीं एक अपने शल में चला जाता था और अपना इलाज करवाने में कतराता था। और आज से 15 साल पहले हमारी सरकारें भी इतनी सजग नहीं थी और दवाइयां भी बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन धीरे-धीरे समाज में बदलाव आया, बहुत सी संस्थाएँ सामने आई, हॉस्पिटल्स और सरकारों ने सोचा कि ये एक महामारी है जिससे हमें निपटना ही होगा। दवाइयाँ जो है मुफ्त में देना शुरू हुआ, और इस तरह से करते-करते हमारे बीच में कुछ लोग आए जिन्होंने बताया कि हिम्मत जुटाई और कहा कि हाँ, वो HIV पॉजिटिव हैं। और वो पॉजिटिव स्पीकर्स बने और ऐसे लोगों की मदद करने लगे जो इस बीमारी से ग्रसित पहले से थे, या ऐसे लोग जो रिस्क में थे। अब रिस्क में कौन है? रिस्क में तो हम सभी हैं, लेकिन हमारी जो भारत सरकार है वो बहुत ही इंटेंसिवली 4 समुदायों के साथ काम करती है हमारे पूरे देश में। उसी के तहत ये कार्यक्रम हम भी करते हैं, और वो 4 जो समुदाय हैं वो हैं जिसके साथ में NACO जुड़ा हुआ है। NACO का नाम आपने सुना होगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलग-अलग फेजेस हुए हैं। अभी हम लोग NSCP 4 वाले फेज में चल रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले सेक्स वर्कर्स, ऐसे ड्रग यूजर्स जो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांसजेंडर, ये 3 कोर ग्रुप बनाए गए, और इसके अलावा 2 ब्रिज पॉपुलेशन बनाए गए, माइग्रेंट पॉपुलेशन और ट्रकर्स। तो इस तरह से पूरे ग्रुप में पूरे देश में बांटा गया है और इस तरह से काम होता है। अब आप बोलेंगे कि इस ग्रुप के साथ क्यों? इस ग्रुप के साथ इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। इनको HIV एड्स होने का खतरा ज्यादा है, और इन क्योंकि ये सब लोग हमारे समाज का हिस्सा हैं, इसलिए कहीं न कहीं हम सब भी जो है रिस्क में आते हैं। इसलिए सरकार द्वारा ये सोचा गया कि पहले हम इन लोगों के साथ में इंटेंसिवली काम करेंगे। तो सेक्स वर्कर्स, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स और ट्रांसजेंडर्स या MSM, इनके साथ में बहुत ही इंटेंसिवली काम किया जाने लगा। साथ में ट्रकर्स और माइग्रेंट पॉपुलेशन। अब ट्रकर्स और माइग्रेंट पॉपुलेशन क्यों?
ट्रकर्स और माइग्रेंट पॉपुलेशन इसलिए क्योंकि ये ब्रिज पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन ऐसी है जो काफी लंबे समय के लिए बाहर रहती है, और जब बाहर रहती है तो ये अनसेफ सेक्स प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद जब ये बहुत समय के बाद अपने घरों में जाते हैं तो इनकी फैमिली जो है रिस्क में आ जाती है। फैमिली में उसकी पत्नी को इन्फेक्शन का डर रहता है, या उसके उनके होने वाले बच्चों को भी इस इन्फेक्शन का डर होता है। और दूसरे होते हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन। माइग्रेंट पॉपुलेशन के साथ में भी वही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो घर का मुखिया है, जो घर का पुरुष है, वो कमाने खाने के हिसाब से एक शहर से दूसरे शहर, या एक राज्य से दूसरे राज्य, या एक देश से दूसरे देश पलायन करते हैं अपने काम के सिलसिले में। और अगेन जब वापस आते हैं तो उनके परिवार को, उनके बच्चों को इस रिस्क रिस्क रहता है इस इन्फेक्शन के होने का। तो इसलिए इन कम्युनिटीज के साथ में इंटेंसिवली काम किया जा रहा है। अब जब हम करते हैं तो क्या परेशानियां होती हैं? आप जब जाएंगे तो आपको इस बीमारी के बारे में बताने में थोड़ी हिचक हो सकती है। साथ में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो आपको इस अवेयरनेस को करने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि नहीं, ये इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नहीं होती, और हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि इस बीमारी को ज्यादातर हमने एक सोशल वो दे दिया है। कहीं ना कहीं हम व्यक्ति का कैरेक्टर इससे मापने लग जाते हैं। तो इसलिए शहरों में, और खास तौर पर शहर के आसपास के जगहों में, इस तरह की समस्या होती है। लेकिन आप जब गाँवों में जाएंगे तो गाँव में क्या, लेकिन गाँव मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में काम करते हैं, और वहां पर भी ये बीमारी अपने पैर पसार चुकी है, और वहां पे भी हमें लगातार इन्फेक्शंस मिल रहे हैं, एचआईवी इन्फेक्टेड लोग मिल रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, और गांव और शहर किसी भी व्यक्ति से, लोगों से अछूते नहीं रहे हैं। खास तौर पे जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं, वहां पे इन चीजों का ज्यादा खतरा देखने में आता है। तो हम जब फील्ड पे जाएं तो हम एक ही कारण को फोकस ना करें, हम सारे कारणों को फोकस करें, और लोगों को इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि कोई भी व्यक्ति जो इन चारों चीजों के गिरफ्त में आया हो, या चारों में से कोई एक चीज उसके साथ हुई हो, तो हम जो है टेस्टिंग के लिए, सबसे पहले आपको टेस्टिंग के लिए लोगों को जगाना पड़ेगा कि सबको अपना स्टेटस जानिए कि स्टेटस क्या है। और उसके लिए जरूरी होता है कि आप खुद भी अपना स्टेटस निकालिए। जब आप खुद अपना स्टेटस साथ में रखेंगे तो आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसको कभी भी खून चढ़ा हो, या कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके पार्टनर्स हो, मल्टीपल पार्टनर्स हो, या कभी उन्होंने कुछ अनसेफ सेक्स किया हो, तो ऐसे सभी लोगों को एक ना एक बार अपना टेस्ट कराना चाहिए। और जब हम अवेयरनेस के लिए गाँव में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमें ये 4 कारणों के बारे में खास तौर पे लोगों को बताना है, और ये भी बताना है कि स्टिग्मा से कैसे बचें। क्योंकि जब एक व्यक्ति टेस्ट कराता है और उसको पता चलता है कि वो एचआईवी इन्फेक्टेड हो गया है, तो वो एक ट्रॉमा में चला जाता है, वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां उसको मौत दिखती है। उसको लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं बचूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितने लोग इस बीमारी के बारे में जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो कई बार होता है कि हम देखते हैं फील्ड में कि आधी अधूरी जानकारी होती है, और उन लोगों के साथ ये समस्याएं होती है। तो इसलिए जब भी कोई एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति आपको पता चलता है, तो उसको बहुत ही प्यार से उसके साथ पेश आइए, और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करिए, और उसको बताइए कि एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है। मैं भी 2 लाइनों में आपको बता देती हूँ कि एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है। एचआईवी और एड्स दोनों एक नहीं है। एचआईवी पॉजिटिव जब हम किसी को कहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ एचआईवी का वायरस है, और उस वायरस के साथ आदमी एक
स्वस्थ जीवन जी सकता है प्रॉपर डाइट्स करके, एआरटी के मेडिसिन लेके, रेगुलर एआरटी के मेडिसिन ले और अपना डाइट को ठीक रखे। और डाइट को ठीक रखना मतलब कोई बहुत ही महंगी चीजों को मुझे खाना है, मुझे डाइटिशियन को कंसल्ट करना है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारी संस्था जिनके साथ काम करती है, वो अति गरीब लोग भी हैं हमारे इसमें। तो डाइट फॉलो करना कहीं भी ये नहीं है कि मुझे महंगी चीजों का सेवन करना है। बहुत से ऐसे लोकल फूड होते हैं जो जिसका सेवन करके हम एक स्वस्थ लाइफ लीड कर सकते हैं। और जैसा मैं पहले काम करती थी, मैं वैसा ही काम आगे भी कर सकती हूँ। साथ में इससे संबंधित लॉज भी हैं, जिसमें अगर आप एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं तो आपको कोई नौकरी से निकाल देगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए अब एक हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो मैं क्या बता रही थी कि एचआईवी पॉजिटिव और एड्स में क्या फर्क है। तो एचआईवी पॉजिटिव अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ एचआईवी का वायरस है। और एड्स जो है, एड्स एक अवस्था है। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव हुए और आपने उसका इलाज नहीं कराया, तो धीरे धीरे आपके जो इम्यूनिटी पावर होती है वो खत्म होने लगती है। और जब आपकी इम्यूनिटी पावर खत्म होती है तो आपका शरीर जो है अलग अलग बीमारियों को इनवाइट करने लगता है, जिसमें टीबी एक मेन है। जब बीमारियों को इनवाइट करने लगता है और पहले ही आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसको कहते हैं एड्स। तो इस अवस्था में पहुंचने के बाद जो है व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि वो अपना उपचार नहीं कर रहा है। लेकिन हम टेस्टिंग की बात इसलिए करते हैं कि जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी बीमारी का पता चल जाए और बीमारी का पता चलते ही हम ऑन एआरटी चले जाएं। एआरटी इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये आपका जो एआरटी की मेडिसिन होती है, ये आपके वायरल लोड को, आपके बॉडी का जो वायरल लोड है उसको नियंत्रित रखती है। हमारे शरीर में CD4 की जरूरत जितनी होनी चाहिए उसको कायम रखती है। इसलिए जिन लोग भी ऑन एआरटी होते हैं उनको समय समय पर अपना CD4 टेस्ट कराते रहना होता है। और उसमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि 600 से नीचे उनका CD4 ना हो। एक आम आदमी का, हम सब अब जब भी अपना CD4 कराएंगे तो 1000, 1100, 1200 इस तरह से CD4 आता है। तो ये एआरटी जो है आपका वायरल लोड को नियंत्रित करके रखती है। और जब चीजें नियंत्रित, जैसा आप किसी को बीपी है या किसी को शुगर है, तो वो भी उस चीज को नियंत्रित करके रखेगा तो उसको उतनी समस्याएं नहीं आती। हालांकि इसकी जो गंभीरता है, अगर किसी को डायबिटीज होता है, वो नियंत्रित रखता है, प्रॉपर खान पान भी रखता है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसके जो शरीर के दूसरे पार्ट्स हैं उसको वो धीरे धीरे अफेक्ट करता रहता है, डिटीरियोरेट होती रहती है बॉडी के पार्ट। बट एचआईवी में ये सब नहीं है। लेकिन ये एक, क्योंकि लाइलाज बीमारी है, जैसा बीपी और डायबिटीज है, बीपी और डायबिटीज का भी कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है कि उसको आपको दवाई को खाया आपने या कोई वैक्सीनेशन लगा लिया और आप ठीक हो गए। इट इज सेम एज these the other lifeline diseases, but the only thing is कि इसके साथ में स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। इसको किसी और चीज से जोड़ के देखा जा सकता है। हमें जब बीपी और डायबिटीज होता है तो हम बड़े आराम से बताते हैं कि अरे मेरे को तो बीपी हो गया यार, मेरे को डायबिटीज हो गया है। लेकिन जब व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होता है तो वो उतने उससे नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि इसके साथ वो स्टिग्मा जुड़े हुए हैं। तो हमको आपको मिलकर इस स्टिग्मा को खत्म करना है, गांव गांव तक इस बात को पहुंचानी है, हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाना है कि वो सुरक्षित कैसे रह सके। जो इन्फेक्शन हो चुके हैं आज तक, वहां पे उसको रोकना है, उसको स्टॉप करना है, उसको आगे बढ़ने से रोकना है। और कैसे बचा जा सकता है? बहुत ही सिंपल है। जिन 4 कारणों को मैंने बताया, इन 4 कारणों का ही हम पालन कर लें
तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, पूरी दुनिया को हम इस रोग से बचा सकते हैं। अब इसमें इतना इतना हल्ला क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इलाज नहीं है, और इलाज नहीं है तो क्या दूसरा उपाय हो सकता है, वो करना है। जिस तरह हमने कोरोना से लड़ाई की है, उसी तरीके से आने वाले समय में हम सब एकजुट होकर इस पैंडेमिक से लड़ना होगा, जो खास तौर पे यूथ की जान लेती है। आप जानते हैं कि एचआईवी से ज्यादातर जो यूथ ग्रुप है, जो हमारा वर्क फोर्स जो जिस एज में होता है, वो ग्रुप है, तो उसको हमें बचाना होगा। इससे कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है। तो जैसा कि मुझे रणधीर ने बताया था कि ज़्यादातर हमारे बीच में स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे खुशी है कि इस फ्लैग को आगे लेके हमारे यूथ चल रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो यूथ है, बिना डरे, बिना संकोच के इस संदेश को एक-एक व्यक्ति तक लेके जाएगा कि हमें एड्स मुक्त समाज की रचना करनी है। हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ पे आगे हम लोगों को मरते हुए ना देखें या इन्फेक्टेड होते हुए ना देखें। और मैं सबको बताना चाहूँगी कि हर अस्पताल में, हर सरकारी अस्पताल में इसका मुफ्त इलाज होता है। इसके लिए मुफ्त काउंसलिंग है, इसकी दवाइयाँ मुफ्त है। तो कहीं भी कोई व्यक्ति दवाई के अभाव में ना मारा जाए। मेरा कहने का, आपको ये बताने का मकसद ये है कि कहीं दवाई के अभाव में किसी की जान ना जाए। तो ये मोटा-मोटा मैंने आपको बताया, हालाँकि ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैंने मोटा-मोटा आप सबको बताने की कोशिश की है, और अगर किसी के पास कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को अ, समझाया हम लोगों को। और हमारे कई सारे व्यूअर्स जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, कुछ के सवाल अगर हैं, एक सवाल ये है कि क्लासरूम के अंदर तो स्टिग्मा खत्म हो जाता है, हम जब समाज में लोगों से जब कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ कैसे हम उनको समझाएं? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप गांव में लोगों के साथ कनेक्ट होके, तो किस तरह का कम्युनिकेशन आप करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जैसे क्या कुछ एक्टिविटी होती है या काउंसलिंग होती है? तो सवाल मेरे का है कि वो कैसे हम जब समाज में जाते हैं तो किस तरह से बात की शुरुआत करें? जी। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने सवाल किया है कि क्लासरूम में स्टिग्मा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि क्लासरूम में जितने लोग बैठे रहते हैं, वो सब इस बीमारी के बारे में जानते हैं। और जब हम समाज के अंदर जाते हैं, हम जब फील्ड में जाते हैं, हम जब नॉर्मल लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात होती है कि उन सबको इस बीमारी की जानकारी नहीं होती है। तो जब हम कहीं भी कभी भी फील्ड में जाएँ, तो सबसे ज़रूरी है कि हम किन 4 कारणों से ये बीमारी फैलती है, उसके बारे में बताएँ। सबसे पहले आप इस बीमारी के बारे में बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि जैसे दूसरी बीमारियाँ होती हैं, सिर्फ़ उ उसी तरीके से ये बीमारी भी है, लेकिन कारण अलग हैं। लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़ जैसे होती हैं, वैसे ही ये भी एक डिसीज़ है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसके कारण अलग हैं और दूसरी बीमारियों के कारण अलग हैं। जैसे कि सिगरेट पीने से, या जर्दा, या जो भी ऐसी चीज़ें, नशीली चीज़ें करने से आपको कैंसर होता है ना? तो बहुत से समाज में इसको भी बुरा माना जाता है कि आप ये धूम्रपान करते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो भी आपको एक बीमारी होती है। तो आप एक कंपैरिज़न दे सकते हैं कि रीज़न अलग-अलग हो सकते हैं, तो उससे वो समझाने में आसान होता है। हमारे साथ ये हुआ कि हमने समझाया,
और दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स लेना कि कैसे हम बचने के जब हम उपाय करते हैं, तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब हम बताते हैं या हम बात करते हैं, जैसे हमने जेलों वगैरह में भी काम किया है, तो जेल वगैरह में जैसे काम हम बताते हैं तो ज्यादातर जो है बहुत बार हमें अनपढ़ लोग भी मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनको जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को हम कुछ एक्टिविटीज करके बताते हैं, जैसे कि अ, अगर हमें ये बताना है कि हमें अनसेफ सेक्स से बचना है, तो हम कुछ इस तरह के एक्टिविटी करते हैं, जैसे हमने किसी से हैंडशेक किया, है ना? तो हैंडशेक किया तो या उसके हाथ में भी, अगर जैसे मैं कोरोना का एग्जांपल ले लूं कि कोरोना के लिए अगर मैंने हैंडशेक किया तो मेरे को कोरोना हो सकता है, कोरोना के वायरस उसके थ्रू मेरे साथ आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने ग्लव्स पहन लिया, ग्लव्स पहन के मैंने फिर हैंडशेक किया, तो मैं मेरे से वो वायरस दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से छोटे-छोटे एग्जाम्पल्स लेके भी आप बता सकते हैं कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी को आप दूसरे बीमारियों से कंपेयर करते हुए बताइए कि हर बीमारी का कारण अलग हो सकता है और अलग-अलग कारणों से जो है अलग-अलग बीमारियां हो सकती हैं। तो एड्स के जो कारण है वो आप बताइए और उससे बचने के उपाय भी साथ में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन से आपकी बताई हुई चीज किसके कोई काम आ जाए और उसको अमल में लाए वो और अपने जिंदगी को, मूल्यवान जिंदगी को बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सो डियर एंड रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंडिकेट कर दें चैट बॉक्स में। किन्हीं के मन में अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हमारे एक और स्पीकर थे, लेकिन किसी वजह से, मेडिकल इमरजेंसी के वजह से वो नहीं जुड़ पाई, और उनका व्याख्यान हम अगले सत्र में जरूर कराएंगे। तो इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम दिया देता हूँ। थैंक यू सो मच इंदो जी, आपने बहुत ही बखूबी तरीके से अवेयरनेस, एड्स के अवेयरनेस के ऊपर अपना व्याख्यान रखा। सो थैंक यू सो मच। डॉक्टर मेहंदी जी का सवाल है, कैन यू अरेंज सच वेबिनार रिमोट एरिया लाइक लद्दाख? जी हाँ, मेहदी साहब, हम डेफिनेटली, आप हमें थोड़ा सहयोग करें तो हम डेफिनेटली दूर के लोगों के लिए भी हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे इस तरह का। बहरहाल हमारा हर वीक वेबिनार होता है रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, इंटेलेक्चुअल इश्यूज। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, खासकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड थैंक यू नाइट। एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू।